तारे झियड़े एक टेक तू लाए बिडाने आस। नानक नाम ते आए कारज आवे रास। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਿਤੀ 20 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लख लख वार शुकराना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला ये शुकराना सत्संग मेरे भतीजे दे नाल संबंधित है। मेरा भतीजा जो कि बीटेक कर रहा, वो सैकेंड ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਮਾਣ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ, ਧੈਰਯ ਰੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆ ਮੰਗਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆ ਮੰਗਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਹੜ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕਮਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਰਥਡੇ ਬਣਾਇਆ।
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 74 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਕਟਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ, ਢੋਕਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ, ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੇਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਟਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਰਥਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਰਥਡੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕੇਕ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਢੋਕਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਪਣਾ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੇਕ ਕਟਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਕੇਕ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਤ ਪਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਕ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗਿਫਟ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਿਨਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ, ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਰਥਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਦੇ ਆਵੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਵੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਫੇਰਾ ਪਾਵੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬੈਠਦੀ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत अच्छा पावन दिन है, छठा महीना, जून का महीना, और आज 22 तारीख है, सोमवार है, हमारे गुरुपा का दिन है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को इस समय रात के 8:25 हो रहे हैं और आपने शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा का कहते हैं ना कि गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू हमसे कनेक्ट करते हैं और हमारे मन में चल रही बातों को या हमारे जो हम चाहते हैं उनको वो कैसे हमें इशारा देते हैं कि वो काम कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, क्या है करना है, तो वो हमें टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं। तो ऐसे ही गुरुपा के मेरे 2-3 दिन से सत्संग हैं जो मैं सुन रही हूँ। गुरुपा मुझे सुना रहे हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना ही करना है, बस शिकायतें नहीं करनी है। शुक्राने में बहुत दात है बेटा, बहुत सारा खुशियाँ हैं और शुक्राना जितना करोगे उतना बरकत होगी, उतने तुम्हारे बुरे कर्म कटेंगे और जल्द से जल्द मन की सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। क्योंकि शुक्राना करना गुरुपा को बेहद पसंद है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें उनकी वधियाई होती है, क्योंकि इसलिए उसमें हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे बुरे कर्म कटते हैं और हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, एकमात्र साधन बनते हैं। तो संगत जी, बस दिल खोल के शुक्राना करिए। गुरुपा ने जो दिया है, जो है, सब उनकी देन है, उन्होंने दिया वही संभालें, उनको सारी जिम्मेदारी दे दीजिए। और उतार चढ़ाव सब लगे रहते हैं जीवन में, लेकिन एक सहारा है और एक विश्वास, वो गुरुपा है जो कभी ना हमें गिरने देंगे, ना टूटने देंगे, ना बिखरने देंगे। हमारे पिता हमारे साथ हैं, क्योंकि पिता का साथ बहुत ज़रूरी होता है। और कल ही फादर्स डे था, 21 तारीख थी, रविवार। तो सॉरी गुरुपा, कल सत्संग नहीं शेयर कर पाई। हैप्पी फादर्स डे पापा। आप दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं। आप दुनिया में सबके पिता को खुश रखिए, सबके घर बरकत हो, सबके घर से बीमारी दूर हो जाए, पैसों की तंगी, कलेश, नेगेटिविटी, इन सब को दूर करिए। हर रिश्ते में प्यार, इज़्ज़त, मान सम्मान हो गुरुपा। हर घर में खुशियाँ हों। बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है संगत जी। मन में सच में इतनी अजीब सी नेगेटिविटी आ जाती है जब कुछ चीज़ें सोच लो या कुछ चीज़ें देख लो, और हम इंसान हैं और हम नेगेटिविटी की तरफ जल्दी बढ़ जाते हैं, बल भूल जाते हैं कि करने वाला, देने वाला हमारा परमात्मा, हमारे गुरुपा है। लेकिन फिर भी हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और बेचैनी आने लगती है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अपने गुरुपा का चेहरा याद आता है और उनका साथ है और उनके जो भी हम पर किए गए उपकार हैं वो याद आते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सच में गुरुपा हमें फर्श अर्श तक पहुँचाते हैं, जो कभी सोचा भी नहीं था वो सब दिया मेरे गुरुपा ने, और हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किया है।
पिछले इसी साल ले पूरे 1 साल पहले इस समय चीज़ें क्या थीं और आज पूरे 1 साल बाद इस समय चीज़ें क्या हैं, शुक्राना है गुरूबा। मेरी दुनिया की सारी खुशियाँ आपसे हैं, बस आप साथ रहिए, कभी आपको दुखी निराश ना करो अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी वाणी से। आपने जितना दिया है इतना तो कभी सोच भी नहीं सकते थे गुरूबा। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी दुनिया हैं आप, मेरा सब कुछ आप हैं, सब आपने दिया, हर रिश्ता आपसे है, हर रिश्ते की नींव, सच्चाई, आधार सब आप हैं। आप ही को सँभालना है और थैंक यू। और अपनी बच्ची के मन से जो भी नेगेटिविटी उनको दूर करिए। हर परिस्थिति का शुक्राना, हर खाने-पीने का शुक्राना, रहने-सोने का शुक्राना, हर एक काम का शुक्राना जो भी आपने दिया है। मेरे सभी देवी-देवताओं का शुक्राना। आप सब ने हमेशा साथ दिया, प्यार दिया, अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाई और गुरुपाद से मिलवाया है। अपने बच्चों पर हमेशा अपनी मेहर, अपना प्यार बनाए रखिए। मेरे सभी पितृजन, मेरे पूर्वजनों को कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि नमस्कार। आपकी बेटी, आपके बच्चों, आपके परिवार की तरफ से आपसे जो भी आपके बच्चों से गलतियाँ हुई उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। संगत जी, अपने पितरों को, अपने पूर्वजनों को ज़रूर याद करिए, उनको ज़रूर थैंक करिए और उनको ज़रूर हर एक खुशी के काम में उपस्थित होने के लिए आप उनको निमंत्रण दीजिए और हमेशा उनके नाम का दीपक शाम को ज़रूर जलाइए। घर में बरकत होती है और बहुत सारी खुशियाँ ही रहती हैं। और हमेशा उनको याद रखिए अपने दिल में, अपने मन में और हमेशा उनसे भी बात करिए। और गुरुपा तो हैं, वो सब सँभालेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुपा सब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने दिया, आप ही सँभाल रहे हैं। हर घर में बस खुशियाँ हों और आप हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा, अच्छा, अच्छा है। आपके बच्चों के मन में क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है, सब आप जानते हैं। बस आपके बच्चे आपसे ही बोलें, आपसे ही कहें, दुनिया में किसी के सामने ना रोएं, ना हाथ फैलाएं। हे मेरे गुरुपा, थैंक यू सो 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 मच अपनी बच्ची बनाने के लिए। संगत जी, शुक्राना करिए, दिल खोल के करिए, आपकी सारी मुराद जल्द से जल्द पूरी होगी। गुरुपा बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तो सच में गुरुपा को कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शुक्राना करिए, आपका दिल बहुत 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 अच्छा जाएगा। और ठीक है, कभी कभी चीज़ें होती हैं तो हमें हर चीज़ को फेस करना है, क्योंकि जब 90% कर्म हमारे बुरे और गुरुपा अपने ऊपर संकट ले लेते हैं, सिर्फ 10% हम भोगते हैं। तो सोचिए अगर 100% भोगना पड़े तो हमारी क्या स्थिति हो, जब हम इतना ही नहीं भोग पाते हैं। और मुझे तो लगता है कि हम 1% भोगते हैं, क्योंकि जो भी हम भोगते हैं हमें उसका एहसास भी नहीं होने देते गुरुपा, और हमारी सारे संकटों को, कष्टों को दूर कर देते हैं। संगत जी, आप सबके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, सबके घर में नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है, पैसों की तंगी, बीमारी, सब कलेश ख़त्म होने वाले हैं। हर रिश्ते में सिर्फ प्यार होगा और गुरुपा का शुक्राना करिए। बस गुरुपा हैं तो दुनिया में सारी खुशियाँ हैं। थैंक यू गुरुपा, आप मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं। बस अपनी बेटी को फिर से, जैसे आपकी बेटी पूजा पाठ करती थी, मन लगाती थी, वैसे ही फिर से आपकी बेटी पूजा पाठ कर पाए, मन लगाए। और जो भी गलत भाव आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, नेगेटिविटी आ रही, घबराहट, उन सबको दूर करिए, क्योंकि आप ही ने सब दिया है, आप ही को सब संभालना है। अनंतम शुक्राना है मेरे पालिक का। और जिनके साथ भी गलत हुआ है गुरुपा, उन सबके परिवार की रक्षा करिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए और उनको इंसाफ दीजिए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो गुरुपा। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है और हुआ है गुरुपा, सब आप ही को संभालना है। आप हमारी दुनिया हैं। थैंक यू सो मच। और संगत जी, गुरुपा का तो जन्मदिन आ रहा है, तो बस गुरुपा से अरदास है कि आप सब जानते हैं और आपसे बेहतर कुछ कोई नहीं जानता। जैसी आपकी मर्ज़ी, आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, हमेशा आपको खुश कर सकूँ, अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी वाणी से कभी आपको दुखी ना करूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, कभी छड़िएगा नहीं, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। चलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज गुरु जी ने मौका दिया है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। गुरु जी बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आजकल मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो गुरु जी ने मुझे
कहा है कि तूने जल्दी-जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, क्योंकि तू बहुत जल्दी भूल जाती है और फिर तुझे याद नहीं रहता। तो सॉरी गुरुजी, मैं ध्यान रखूँगी। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है और ब्लेसिंग्स करते जा रहे हैं, और इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि कभी-कभी मुझे समझ में भी नहीं आता, बाद में एहसास होता है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने मेरे बेटे, मेरे अंकल, सबको बहुत-बहुत ब्लेस किया है, और जो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरे बेटे का है। और वैसे तो ये बहुत छोटा सत्संग है, मगर शुक्राना है, मगर ये अगर देखा जाए तो ये दिखाता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, और उन्हें हमारी हर फीलिंग्स का पता होता है कि हम कब सैड हैं, हम कब हैप्पी हैं। और एक फादर की तरह, एक पेरेंट की तरह, एक फ्रेंड की तरह वो अपना रूप बदलते रहते हैं। जब हमें एक पेरेंट की ज़रूरत होती है तो गुरुजी हमारे पेरेंट बन जाते हैं, और जब हमें एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है तो गुरुजी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। तो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में सबकी कमी पूरी करते हैं। अ, मैं अब गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना एवरीथिंग मानती हूँ, लाइक फ्रॉम अ पेरेंट टू अ फ्रेंड, जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ, और कभी-कभी तो मुझे उन्हें बताना भी नहीं पड़ता और वो सब कुछ जानते हैं। ही नोज़ कि वो मुझे कैसे हैप्पी करेंगे, और वो हैप्पी करते हैं मुझे, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ये एहसास के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। एक्चुअली मैंने अपने मेरे बेटा जो बड़ा वाला है, उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, और उसकी एक बहुत गंदी हैबिट है कि वो अपनी चीज़ें थोड़ा सँभाल के नहीं रखता है, जिसकी वज़ह से मैं उसे बहुत गुस्सा भी करती हूँ। और उसने अपनी सारी बुक्स जो हैं वो मतलब बहुत ही बैड कंडीशन में रखी हुई है। तो एग्ज़ाम से पहले उसने मुझसे कहा कि मम्मा, मेरी एक बुक है एसएसटी की, और उसके काफ़ी पेजेस टोर्न है और मुझे पढ़ाई करनी है और मैं उसमें पढ़ नहीं पाऊँगा। तो अगर आप प्लीज़ मुझे दोबारा वो बुक खरीदने दीजिए। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, और मैंने उसको 500 रुपीज़ का नोट दिया, ये कहकर कि तुम खुद से खरीद लेना स्कूल में। और वो गया लेकर, एंड उसने मुझे जब घर आया तो उसने बोला, मम्मा मैं बुक शॉप क्लोज़ थी और मैं ले नहीं पाया बुक। तो मैंने उसे बोला, अच्छा तो वो पैसे मुझे वापस कर दो, तो नहीं तो तुमसे गुम जाएँगे। और उसने बोला कि मम्मी अच्छा मैं करता हूँ, एंड देन सडनली ही जब उसने अपना बैग को सर्च किया तो उसमें पैसे नहीं थे। सो वो बहुत घबरा गया, एंड मुझे भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस है और वो कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं रखता है। तो मेरे और उसके बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए और मुझे काफ़ी गुस्सा आया, मैं काफ़ी उस पे शाउट हुई। और म मगर उसने मुझसे कहा कि मम्मा उसने देखे थे, जब छुट्टी हुई थी तो उसी के पास थे, अभी वो वहाँ नहीं है। एंड मैंने मुझे उसकी केयरलेसनेस पे बहुत गुस्सा आया, और पता नहीं क्यों मैंने कुछ कहा, उसके बाद मेरे मन में ऐसे ही एक बार बात आई कि गुरुजी कि मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि लोगों के पैसे गुम जाते हैं और फिर दोबारा उन्हें वो कोई भी चीज़ आप वापस मिल जाती है, आप ऐसा चमत्कार करते हैं। एंड देन ये मैंने सोचा, और उसके बाद फिर मैंने ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, गुरुजी को मुझे ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, और फिर मैं भूल गई। मगर गुरुजी जानते थे, एंड वो आपकी मन की हर एक बात जानते हैं, आप कब परेशान हैं एंड एवरीथिंग तो वो उस दिन मुझे एहसास हुआ, क्योंकि नेक्स्ट दिन मेरा बेटा स्कूल गया और वो जब वापस आया तो उसने कहा कि मम्मा वो पैसे मिल जाएँगे, मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ बैठा था, उसको वो पैसे दिखे और वो अपने घर ले गया और वो मुझे कल वापस दे देगा वो पैसे।
तो जब उसने मुझसे ये बात शेयर करी तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि देखिए पैसे ऐसा होता है कि कोई जिस किसी को भी मिल जाता है तो कोई वापस लौटाता नहीं है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई आपको पैसे वापस लौटा दे। तो बट ये गुरुजी की दिस इज़ गुरुजीज़ ब्लेसिंग कि वो बच्चा ने मेरे बेटे को बोला कि हाँ, मुझे तुम्हारे पैसे दिखे एंड मैं तुम्हारे पैसे कल वापस ले आऊँगा और तुम ले लेना। तो इस तरह गुरुजी ने मेरी बात जो मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा था, वो सुना और गुरुजी ने देखिए वो पैसे वापस मिल गए और मेरा बेटा उस पैसों से बुक ले आया। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी हमें आपको परेशान नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी हमारे पास गुरुजी के सिवा और कोई नहीं है। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम डर जाते हैं, तो हम सबसे पहले गुरुजी का ही नाम लेते हैं और उन्हीं को याद करते हैं, और गुरुजी भी 1 सेकंड नहीं लगाते अपने संगत की बात सुनने के लिए और उनकी बात पूरी करने के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा। उसके बीच अगले कुछ दिन मैं बहुत सैड थी और मैं बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर रही थी। पता नहीं, मैं गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एक चीज़ के लिए कि पहले जब मैं रोती थी या बहुत सैड होती थी तो मैं अपने गुरुजी की जहाँ मैंने गद्दी लगाई है वहाँ नीचे बैठकर मैं रोती थी गुरुजी के सामने, बहुत रोती थी। और फिर जब बहुत रो लेती थी तो फिर मुझे मेरा मन हल्का हो जाता था। जैसे हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत सैड होते हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने मदर के पास जाते हैं और उनके गले लग कर खूब रोते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो मगर अभी मुझे गुरुजी ने शायद गुरुजी मुझे अब थोड़ा-सा प्यार करने लगे हैं और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है कि तू जो गुरुजी की गद्दी जहाँ लगी है, तो मेरे पास आकर वहाँ मेरे पास खड़े होकर मुझे हग करके रो लिया कर। तो आजकल पता नहीं, मैं जब भी बहुत सैड होती हूँ या बहुत परेशान होती हूँ और किसी से नहीं डिस्कस कर पाती क्योंकि मेरा कोई नहीं है जिसके साथ मैं ये शेयर कर सकूँ अपने दिल की बातें, तो मैं गुरुजी के कमरे में आती हूँ, जो मैंने गुरुजी का बनाया हुआ है, और वहाँ जाकर मैं गुरुजी की गद्दी जहाँ पे गुरुजी बैठे हैं, उनके कंधे में सर रख कर खूब रोती हूँ। एंड उस रोने के बाद मुझे एक बहुत ठंड सी महसूस होती है। आई फील सो पीस। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया है और मैं बिल्कुल हल्की हो जाती हूँ। तो उस एहसास के लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ, बिकॉज़ हम सभी को ऐसे कंधे की ज़रूरत होती है, कभी न कभी जब हम बहुत दुखी या सैड होते हैं, जहाँ जाके हम रो सकें, गले लग सकें और अपना सारा जो भी हमारे अंदर एंगर है या जो भी हम जिस चीज़ से हम दुखी हैं या परेशान हैं, वो हल्का कर सकें। तो गुरुजी ने मुझे अब ये एहसास, ये एक कंधा दे दिया है अपना कि व्हेनेवर यू आर सैड, यू कम टू मी, यू हग मी एंड यू क्राई जितना तुम्हें रोना है। एंड उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरूपा। उस एहसास के लिए बहुत-बहुत शुकराना। और उस दिन भी मैं बहुत सैड थी, मैं गुरुजी के चरणों पे बहुत रोई एंड गुरुजी तो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, एंड ही कैन नेवर सी हर संग अपनी संगत को वो रोते हुए कभी नहीं देख सकते, एंड ही नोज़ कि उनका मूड कैसे ठीक करना है। तो उस दिन पता नहीं, मेरे बेटे ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, जो मैंने पिछले सत्संग में कहा था, और गुरुजी की ब्लेसिंग से उसका सब में नंबर आया था, तो उसका एक में नंबर आया और उसने एक और एग्ज़ाम दिया था जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, बट गुरुजी तो ही डू सो मैनी मिरेकल्स। उनकी उन उन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, गुरुजी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड उस इंस्टीट्यूट से हमें फ़ोन आया कि मेरा हमारा जो बेटा है वो सिलेक्ट हो गया है एंड ही गॉट अ स्कॉलरशिप, तो आप प्लीज़ आके वो कलेक्ट कर लीजिए।
एंड मैंने अपने अंकल को बोला कि ठीक है आप जाके ले आइए, क्योंकि मुझे घर पे पढ़ाना है, मुझे नहीं कहीं जाना है। एंड मेरे अंकल गए, एंड जब वो गए वहाँ पे, और उनको उन्होंने बोला कि नहीं आप बेटे और उनको भी लेके आइए, अपनी फैमिली को लेके आइए, एंड हम लोग एक फ़ोटो लेंगे, एंड दैट बॉय डिज़र्व इट। ये सब प्लानिंग जो मैं बता रही हूँ, ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। बिकॉज़ क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिंपली दे सकते थे सर्टिफ़िकेट, और वो सब बुके-वुके सब हैंड ओवर कर सकते थे मेरे अंकल को, मगर गुरुजी चाहते थे कि मैं अपने घर से निकलूँ। ही वांट टू मेक मी हैप्पी, ही वांट टू मेक मी ही नोज़ दैट कि मेरा मूड बहुत सैड है और मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। तो उन्होंने अब ये सारी प्लानिंग, उनकी ये सारी प्लानिंग सिर्फ़ मेरे मूड को ठीक करने के लिए थी, ताकि मैं एन्जॉय करूँ, मैं बाहर जाऊँ अपनी फैमिली के साथ, एंड वो आउटिंग पे जाऊँ, एंड वो सब गुरुजी ने प्लान किया, और हम लोग बाहर गए, और मेरे बेटे को कुछ अमाउंट मिला स्कॉलरशिप का, उसको बुके मिला, एंड चॉकलेट्स मिली, एंड हमारी फ़ोटो खींची, एंड वी वर वेरी हैप्पी। और फिर आते वक़्त हमने प्लान किया कि विल हैव अ लंच। तो गुरुजी ने एक बहुत ही प्यारी जगह में, हम बहुत दिनों से जो हम सोच रहे थे कि हम वहाँ पे लंच करेंगे चाइनीज़, तो गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया, एंड इट वाज़ सच अ लवली आफ्टरनून। मेरे बच्चों ने, मेरे अंकल और हमने बहुत एन्जॉय किया, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरुपा। अपनी बेटियों का मूड कैसे ठीक करते हैं, और आपने बिल्कुल मेरा मूड उस दिन इतना अच्छा कर दिया, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा, बहुत-बहुत शुकराना। एंड मैंने अपने पिछले सत्संग में भी कहा था कि गुरुजी ने मुझे मंडे ब्लेस किया है, एंड अब मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया है इस चीज़ का कि मंडे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि अचानक पिछले मंडे को, दैट इज़ द 26 जनवरी, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि दिस मंडे मैं तुमको लेके जाऊँगा बड़े मंदिर, एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने ऐसा कहा, तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि गुरुजी उन्हें कभी-कभी ही बुलाते हैं, और जब वो उन्हें बुलाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मैं उन्हें कभी मना नहीं करती हूँ कि आप क्यों जा रहे हैं, चलिए। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी, एंड मैंने उन्हें बोला ठीक है। एंड उसके 1 दिन पहले मैंने अपने ऑटो वाले अंकल को मैसेज किया कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगी इस मंडे को। तो उनका मुझे रिप्लाई आया कि मैम मैं आपको कॉल करने वाला था, क्योंकि मैं कहीं और हूँ और मैं भी नहीं आ पाता। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, बिकॉज़ उनको पता था कि जो ऑटो अंकल से मैं उनके साथ में आती हूँ बड़े मंदिर, वो उस दिन नहीं आ पाएँगे, और मेरा बड़े मंदिर आना कैंसल हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को ही तैयार कर दिया कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, और मेरा बड़े मंदिर मंडे को जो मैं आती हूँ, जो मेरा डे गुरुजी ने फिक्स किया हुआ है, वो बिल्कुल भी मिस ना हो, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरूपा। आई लव यू फॉर दैट। एंड ये सब छोटी-छोटी, छोटी-छोटी जो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो इतनी सारी है कि मैं अगर उसे बहुत सारी है, एवरी डे गुरुजी कुछ न कुछ ब्लेस कर रहे हैं। कभी मुझे वो पता चल जाता है, और कभी मुझे वो बाद में पता चलता है कि ओह! ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। एंड देन गुरुजी ने मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस किया। वो ऋषिकेश गए, और वहाँ उनका बहुत मन था कि वो हर साल एक शिव जी भगवान जो भी किसी भी शिवलिंग में जाए, और अब उनका मन था कि वो हर हर साल एक तीर्थ स्थान जाए। तो वो गुरुजी ने पूरा किया, वो ऋषिकेश गए, और उनकी बहुत अच्छी बहुत अच्छे दर्शन हुए। उन्होंने वहाँ आरती करी, गंगा आरती करी, एंड वो इतनी अच्छी थी, ही वाज़ सो हैप्पी, एंड उन्होंने कहा कि तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पंडित ने स्पेशली मुझे वहाँ पे गंगा आरती करने को कहा, और पूरा लोग साइड हो गए, एंड उन्होंने मुझे ही बोला। एंड वो बहुत हैप्पी थे, वो उनका बहुत अच्छा रहा ऋषिकेश में, और वहाँ पे गुरुजी ने हम सब पूरी फैमिली के लिए ब्लेसिंग दी। हम सबको रुद्राक्ष दिया, वहाँ पे उनको पंडित ने रुद्राक्ष दिया, और वो हम सबके लिए रुद्राक्ष लेकर आए, और गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा। आप
यूँ ही हमारे सर पे अपना हाथ रखिए और हमें हर गाइड करते रहिए ताकि हम कोई गलत चीज़ ना करें, हम कभी कोई गलत रास्ते में ना जाएँ। और आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरूपा एंड थैंक यू सो मच मुझे शुकराना सत्संग शेयर करने के लिए, कहने के लिए बिकॉज़ मैं आजकल पता नहीं बहुत ही घबराने लगी हूँ, शुकराना सत्संग शेयर करने के लिए। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगी या मैं आजकल बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ, अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स की वज़ह से तो मेरा माइंडसेट सही नहीं है। बट गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप हो और आप हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और आप ये मुझे बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, किसी चीज़ की चिंता मत कर। बस मेरी गुरुजी से एक छोटी-सी अरदास है और गुरुजी वो जानते हैं कि मेरे बेटे को साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत जल्दी घबरा रहा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डर रहा है, उसे बहुत खाँसी हो गई है, वो बहुत खाँस रहा है, उसके एग्ज़ाम सर पे हैं बट मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसे ज़रूर ब्लेस करेंगे और उसका बहुत मन है कि वो अपने एग्ज़ाम से पहले गुरुजी के बड़े मंदिर जाए और लंगर प्रसाद खाए और उसको गुरुजी उसे खूब सारी ब्लेसिंग्स दे। तो हम सारी फैमिली प्लान कर रहे हैं कि हम शिवरात्रि के दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने जाएँ, पूरी फैमिली और गुरुजी का आशीर्वाद लेके आएँ। बट अब बस गुरुजी की मर्ज़ी चाहिए, गुरुजी की हामी चाहिए, तो ताकि हम वहाँ आएँ और गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग्स लें। तो मैं बस अपना शुकराना अभी यहीं समाप्त करती हूँ और अगला शुकराना सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। अ, तो गुरुजी का एक बार और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुकराना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना। पूरी संगत जी, अगर मैंने शुकराना सत्संग शेयर करने में कुछ गलती की हो तो गुरुपा और मेरी प्यारी संगत प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।